आप भेड़चाल चल रहे हैं? नहीं, मैं भेड़चाल नहीं चल रही। Are you following mob mentality? Yes, I am following mob mentality. क्या आप भेड़चाल चल रहे हैं? हाँ, मैं भेड़चाल चल रहा हूँ. Are you following mob mentality? No, I am not following mob mentality. क्या आप भेड़चाल चल रही हैं? नहीं, मैं भेड़चाल नहीं चल रही. Are you following mob mentality? Yes, I am following mob mentality. क्या आप भेड़चाल चल रहे हैं? Are you following mob mentality? No, I'm not following mentality. क्या आप भेड़चाल चल रही हैं? नहीं, मैं चल रही हूँ. Are you following mob mentality? No, I am not following mob mentality. क्या आप भेड़चाल चल रहे हैं? नहीं, मैं भेड़चाल नहीं चल रही. Are you following mob mentality? No, I am not following mob mentality. क्या आप भेड़चाल चल रहे हैं? नहीं, मैं भेड़चाल नहीं कर रही. Are you following mob mentality? Yes, I am following mob mentality. क्या आप भेड़चाल चल रहे हैं? हाँ, भेड़चाल चल रहा हूँ. Are you following? Are you following mob mentality? Yes, I am following mob mentality. क्या आप भेड़चाल चल रहे हैं? हाँ, मैं भेड़चाल करती हूँ. हाँ, ask me. Are you following mob mentality? बेटा जब मैं बिजी रहूं तो किसी से भी पूछ सकते हो, वो दोबारा आंसर दे देगा. लेकिन अगर मैं खाली हूं तो मुझसे भी पूछ सकते हो. नो बेटा, आई एम नॉट फॉलोइंग मॉब मेंटेलिटी. आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द मॉब मेंटेलिटी. क्या आप भेड़चाल चल रहे हैं? नहीं बेटा, मैं भेड़चाल नहीं चल रहा हूँ. अभी तो मैं भेड़चाल तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. हैव यू रिटन दिस? Write it down. No problem. It will be your first speech here, na? But it is second speech of present, right? What's your name? Have you written it? Yes. Should I read? दिव्या, बिल्कुल सेंटर में खड़े होने की कोशिश करना. Okay, guys, I would like to invite Divya Jaiswal. Put your hands together. This is her second speech, but first speech in this place because she's a latecomer. Good morning. Good morning. How are you? I am fine, thank you. And you? I'm also good. This is my first speech before you. So I would like to represent my daily routine in front of you all. I wake up at 6 o'clock in the morning with the ringing of my alarm. Then I turn off my alarm and get up. Then I touch Mother Earth and pray for God. Pray for God. Then I take my medicine. Thereafter, I brush my teeth and have wash. Then I prepare some tea for me and get ready for my tuition classes. Thereafter, I have my tea with some snacks. After that, I come to my tuition classes at 7 o'clock. There I learn and speak English. Then I go to my house.
Then I have wash again. Then I have my breakfast. After that, I wash utensils. Thereafter, I have shower. After having shower, I get dressed. Then I watch some current affairs while taking some snacks. Then I help my mother for uh, on house chores. After that, I teach Shubham, who is in class 8th. Then I have my lunch while watching some videos or reading some comic. Then I take my scooty and go to Nevadganj, and then there I teach Harshal and Abhiman, who is in respectively class 7th and 4th. Then I teach Vanya, who is in class 3rd. At 6:15, I come to my house and prepare some tea for me. While having tea, I watch Prashant Dhawan's video about world affairs. Then I talk to my brother who is in Riva at this time. Then I go to Nandita Manita's house. Then I teach them who is in respectively class 7th and 2nd. Then I come to my house and have wash. Then I wash utensils. After that, I make tortilla. Then instruct my sister and talk to my mother about my future and all these things. Then I have my dinner and use my phone for some time. Then I go to bed at approx 11 o'clock and sleep. Thank you. Yes. Good, Divya. You know, guys, Divya is a late comer, but she adopted a couple of things nicely. दिव्या देर से आई है इस क्लास में, लेकिन उसने एक दो चीजें बहुत अच्छे से अडॉप्ट की. जैसे दिस इज माय फर्स्ट स्पीच बिफोर यू, बिफोर का प्रयोग उसने अपना लिया. इसने वुड लाइक का प्रयोग किया अपने से. पिछली बार शायद बताया था हमने कि 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं. दिव्या, रिप्रेजेंट का प्रयोग गड़बड़ था. यहाँ पे प्रेजेंट का ही प्रयोग करना चाहिए. मैं ये वर्ब आगे जाके कहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए अभी दे दे रहा हूँ. बच्चों, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर प्रतिनिधित्व करना? What should be the second form of represent?
Is my spelling correct? Yes, sir. Yes, sir. इसमें जाके नीचे नुक्ता लगी। बच्चों रिप्रेजेंट का अर्थ जानते दिया, हिंदी में बोले प्रतिनिधित्व करने का मीनिंग। किस तरह को ऐड करना। तो यहाँ पे तो नहीं आएगा बेटा, है ना, यहाँ प्रेजेंट ही आएगा। आई एम प्रेजेंटिंग माई फर्स्ट स्पीच। चलो तुम्हारे मुंह से रिप्रेजेंट का एक प्रयोग निकलवा देते हैं। जो भी आंसर दे सके हाथ उठाना। Who is representing India in Olympics 2022? Neeraj Chopra is representing India in Olympic 2022. ओलंपिक 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ओलंपिक 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व नीरज चोपड़ा कर रहा है। Really? Imaginary. Imaginary. Good. बीजिंग में। हाँ, बीजिंग में हो रहा है ना? Yes, sir. दोस्तों आप देखेंगे अभी ओलंपिक टीवी में आएगा तो एक एक करके सारे देशों की टीम उसमें स्टेडियम में आती है और सबसे आगे जो बंदा होता है ऐसे झंडा लिए रहता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो वो आगे भारत का झंडा ऐसे लेकर आगे आगे चलता है, बाकी पूरी टीम पीछे पीछे चलती है। और ये झंडा पकड़ने का तरीका होता है एनसीसी वगैरह में ऐसे सिखाया जाता है, एक हाथ ऐसा हो रहा है। अब दूसरा और उदाहरण, जो भी उत्तर दे सके हाथ उठाना। ओके गाइस, हु इज रिप्रेजेंटिंग द मीटिंग टुडे? ये सवाल किसी कंपनी के अधिकारी ने अपने बाकी लोगों से पूछा। Sonia is representing the meeting today. वेरी नाइस। अच्छा दोस्तों बताओ, आज मीटिंग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? Sonia is meeting का प्रतिनिधित्व कर रही है। दो प्रयोग हो गए, मतलब वहां मीटिंग चलेगी, अमेरिका से लोग आएंगे या जापान से या चाइना से, तो जो सोनिया है वो आके इस तरह से वो सब लगा रहता ना प्रोजेक्टर वगैरह, तो सब लोग बैठे रहेंगे और सोनिया एक एक चीज समझाएगी कि हमारी कंपनी ये बना रही है, ये बनाया है, इसमें ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो सोनिया आके रिप्रेजेंट करेगी मीटिंग को। एक आध और उत्तर दे देते, एक आध, इस बार कोई तीसरा देना। Who is representing 9th B? Mrs. Verma is representing. Mrs. Verma. Saksham is representing the 9th B. हाँ, 9th B को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 9th B को सक्षम रिप्रेजेंट कर रहा है। सक्षम जो है उस क्लास का कैप्टन होगा या अच्छा खिलाड़ी होगा, जो भी हो। हाँ, तो 9th B को सक्षम रिप्रेजेंट कर रहा है। Who is representing school band? हाँ, दे दो भाई उत्तर। वेरी नाइस। School band का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वैभव कर रहा है। और संयोग की बात है, बैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी ऐसा वो होता है दंड। हाँ,
वो उसको ऐसे ऐसे घुमाता है बड़े अच्छे से, इस तरह से घुमाता है, आगे आगे चलता है, पीछे ढम 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 ढम। स्पोर्ट्स डे पे ना। जबलपुर में सबसे अच्छा स्कूल बैंड रिप्रेजेंट क्राइस्ट का थैंक यू, गुड एग्जाम्पल। Who is representing Man vs. Wild TV show on Discovery? BL Grace is representing Man versus Wild Entities. यहाँ खुद ही है वो सर्विस वाला। हमारे गेस्ट आए थे ना, नरेंद्र मोदी जी, अक्षय कुमार जी। वहाँ रिप्रेजेंट का प्रयोग ठीक नहीं है बेटा। इसलिए हम चाह रहे थे कि 2-4 सेंटेंस बन जाए। किसी ग्रुप का कैप्टन या हेड जब सामने आके अपने ग्रुप के बारे में Who is representing India team? Only is representing India. इंडिया टीम को कौन, इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व Who is representing this battalion? यस मेजर Senior under officer IG Naidu is representing the battalion. इस बटालियन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बटालियन को सीनियर अंडर ऑफिसर IG नायडू प्रतिनिधित्व करेंगे। सर ये किसी हार्ट के लिए भी हो सकता है ना, मतलब जानवर का जिसको होता है। हाँ होता है, और उसी से भेड़ चाल भी बनी। जो भेड़ आगे चलती है, अगर वो गड्ढे में गिर गई तो सारी भेड़ उसी में गिर जाती है। लेकिन बाकी किसी जानवर के साथ ऐसा नहीं होता, इवन बकरियों के साथ भी ऐसा नहीं होता है। पूरी घटना हमने बता दी थी, दोहरा देते हैं। मान लो जंगल में जानवर को फंसाने के लिए शिकारी ने गड्ढा खोदा हुआ है और उसके ऊपर टहनियां लगा के पत्तियों से ढक दिया है कि इस मार्ग से गुजरते हैं वो लोग, पूरी की पूरा हेड़ हेड़ कहते हैं हिंदी में, तो इसमें कोई ना कोई फंस जाएगा और मुझे। तो अगर वहां से बकरियां जा रही हैं, पहली बकरी गिर गई तो बाकी सब ठिठक जाती हैं, रुक जाती हैं और आधी इधर से मार्ग बदल के दूसरे मार्ग से आगे बढ़ जाती हैं। भैंस होगी तो वो भी ऐसे ही करेगी, गाय होगी, हिरण होगा, हर जानवर ऐसे ही करेगा। एक बस गिर जाएगा उसमें और बाकी संभल के दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन भेड़ चाल इसीलिए बोला गया है कि एक भेड़ उस गड्ढे में गिरेगी, दूसरी भी मैं करते हुए उसी गड्ढे में गिरेगी, तीसरी भी गिरेगी, चौथी भी, एक एक करके सारी भेड़ें उस गड्ढे में गिर जाएंगी। इस पे एक विज्ञापन भी बना था किसी कि मैं फलाने कॉलेज से MBA करूंगा, तो वहां से एक दौड़ता हुआ था, मैं भी, फिर एक को भेड़ का वो पहनाया हुआ है, पहना रहता है और वो गिर जाता है उसमें, कि एक MBA करने निकला तो सब MBA करने चले जाते। एक ने बीच में स्टार्ट नहीं होता है, एक टाइम पे इंजीनियर हो रहे थे, अब एक टाइम पे CA हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये भेड़ चाल कहलाती है। ट्रेंड चलता है, मतलब कोई सोचना समझना नहीं कि भाई हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, हम किस क्षेत्र में सफल होंगे, क्या करें, कुछ नहीं। हाँ, बात निकली है तो एक महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं बच्चों। अगर आपका छोटा भाई बहन कोई हो ऐसी स्थिति में जो 12th के बाद क्या करे वाली स्थिति में हो, एक चौराहे पे खड़ा हो, तो जबलपुर में इंस्टीट्यूट भी काफी
खुल गए हैं। लेकिन हमारी एक स्टूडेंट हैं जो कि करियर काउंसलिंग करती हैं। उनकी फीस भी ज़्यादा नहीं है, 500 रुपीज़ है। अगर जीवन भर की काउंसलिंग का सवाल है कि क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि 12th के बाद क्या करें, तो आप चाहो तो बता सकते हो, हम उनका आपको नंबर दे देंगे। शी इज करियर काउंसलर, 1 घंटे देती हैं वो, और पता करती हैं आपसे 1 घंटे बात करके। पहले एक क्वेश्चन शीट देती हैं, उसमें आपको टिक करना होता है, उससे आपके अंदर की प्रतिभा पता चल जाती है। फिर आपसे बातचीत करती हैं और फाइनली आपको वो कुछ ऑप्शंस दे देते हैं कि बेटा अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो इतना % सफल होगे, इसको लोगे तो यहाँ पे इतने % सफलता मिलेगी, इसमें जाओगे तो कुछ ऑप्शंस दे देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई ज्योतिष की तरह बता देंगे कि तुम बहुत अच्छे इंजीनियर, ऐसा नहीं, ऑप्शंस देंगे। हाँ, आप इतने इनमें से किसी एक क्षेत्र में अगर आप प्रयास करोगे तो आपके अंदर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत प्रतिभा मौजूद है, आप इस दिशा में आगे बढ़ो, सफल हो गए। तो अब तुम लोगों ने तो खैर आगे बढ़ के चूज कर ही लिया है, लेकिन कोई और हो, कभी चर्चा होती है ना किसी से, तो तुम हमें मैसेज करना या फोन करना, आई विल सेंड यू हर नंबर। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, वो यहीं बुलाती हैं कि आप इतने बजे अपॉइंटमेंट देते हैं जहाँ सर के यहाँ पहुँच जाओ, तो यहाँ ऑफिस वाले एरिया में काउंसलिंग करते हैं 1 आवर, और जरूरत पड़ती तो आगे। और बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप बाहर बैठे रहते हैं, पहले वो बच्चे से बात करती हैं, फिर उसके बाद बच्चे को बाहर भेज देती हैं। बहुत छोटे बच्चों की अगर बात है तो, और अन्य समस्याओं पे भी चर्चा करते हैं, केवल करियर काउंसलिंग नहीं। अगर आपको अन्य समस्या है, जैसे तुम अगर चाहो ले सकते हो उनसे काउंसलिंग, तुम अगर चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि हम तो उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं। लेकिन उनसे बात करने के बाद तुम में हो सकता है काफी एकदम से परिवर्तन देखने मिले, तुम में भी बहुत सारा। कभी चर्चा की हमने नहीं, तो जो हमारी दैनिक समस्या होती है, जो हम किसी से कह नहीं पाते आमतौर पर, उसका सॉल्यूशन हम देते हैं। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। वेयर का प्रयोग कर रहे थे हम दूसरा एक सेंटेंस बना के आगे बढ़ाते हैं। आई आस्क्ड द टीचर, मैम वेयर टू सिट, देयर इज नो प्लेस। मैंने टीचर से पूछा, मैडम कहाँ बैठूं, जगह ही नहीं है। ये मैंने दूसरा हिंदी यूज किया, कहाँ बैठूं। आई आस्क्ड द टीचर, मैडम वेयर टू सिट, देयर इज नो प्लेस। मैडम कहाँ बैठूं, कोई जगह ही नहीं खाली। I said to him where to find Dora cake. मैंने उससे कहा डोरा केक कहाँ ढूंढूं? Mama said to me where to go. मम्मा ने मेरे से कहा कहाँ जाना? तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है दोनों में सेट गलत है? कहा कि पूछा? क्यों भाई, सोच के देखो ना, प्रश्न कर रहे हो ना तुम, रिपीट योर क्वेश्चन। I asked him where to find Dora cake. मैंने उससे पूछा डोरा केक कहाँ है? मम्मा asked to me आज के साथ तू मत लगाओ। मम्मा asked me where to go. मम्मा ने पूछा कहाँ जाना?
चलना है बिल्कुल बिल्कुल सही हिंदी है, जबलपुरिया हिंदी। कहाँ चलना है? Sometimes I don't understand, sir, where to use this idiom. कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता सर कि ये वाला इडियम कहाँ यूज करना है। This time where I have to go for meeting. सॉरी, तुम लोग को तीन तीन का नहीं दे रहे दंड, एक एक का देते। बहुत दिन से इडियम बाहर नहीं निकले। वो हैव टू का यूज करना है यार, तुम लोग चुपचाप बैठे। अच्छा, सब वेट कर रहे थे कौन शुरू करेगी। Example is better than precept. कंपनी से करने वाली। Great cry little bull. नाम बड़े दशरथों। Nothing succeeds like success. भगवान जब भी देता है सब लोग I am very grateful to you. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। Meet me while the sun shines. पैटी गंगा में हाथ धोने। What is the logic of foods? Don't teach your grandmother to suck eggs. ज़्यादा ज्ञान ना दो। Sorry. When you are alone, do as humans do. That's a bit special. Soft fire makes a sweet. Yeah. Sorry. Sorry. Software makes us human. Soft fire makes a sweet mold. ये उद्देश्य है दंड का पूरा होता है कि आप पढ़ पा रहे हैं सही कि नहीं, लिखा है कि नहीं सही। MALT है, उसी से माल्टोवा नाम का पाउडर बना है, बॉर्नविटा जैसा पाउडर माल्टोवा। ये का फल मीठा होता है। This time we have to go for meeting. इस बार मीटिंग के लिए कहाँ जाना? इस बार मीटिंग के लिए कहाँ जाऊँ? दोनों सही है। I asked Mama, I where to sleep. Sorry, where to sleep. You were absent yesterday. I asked Mama, I बेटा सुनो ध्यान से, तुम आज जल्दी आई थी कि देर से? तो आते समय किसी से जो आया तो उससे पूछा नहीं कल क्या क्या मिला था, लिख लेंगे। तो मतलब जल्दी नहीं आए? जल्दी मतलब बाहर बैठते हो ना तुम लोग आके 2-5 मिनट, तुम आके खड़े हो जाते अक्सर ये लोग जब आते हैं। Krishna asked Radhe where to sleep. हम्म। कृष्ण ने राधा
राधे से पूछा, राधे मैं कहाँ सोऊं? चलो एक एक करना सबको। हिंदी गलत था। कल हमने बताया था ना, देखो इस इंटरेक्टिव में सब्जेक्ट है क्या कहीं? Your words are you wanna बोल रहे थे थैंक यू। A 9 day wonder, चांदी चांदी। कम अगेन प्लीज। A 9 days wonder, चांदी चांदी। A little knowledge is dangerous, अज्ञान खतरनाक होता है। Your days are numbered, तुम्हारे दिन पूरे होंगे। ये सही किया तुमने। वो टाइम ले रहा था, इसने फट से बोल दिया। अब तुम उसको इशारा कर रहे हैं कि भैया बोलो, और वो अपने में खोया हुआ था तो उसने बोल दिया। अपने पैर पर कोई आगे बढ़ना। A rotten apple may injure its companion. Come again, please. A rotten apple may injure its companion. देखना इंजर की स्पेलिंग क्या लिखी? उच्चारण में ऐसा लग रहा है जैसे वो सेकंड फॉर्म बोल रहा है। The valley has no ears. मुंह के वजह ना हो दो बार। Well begun is half done. अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। द्योतक होती है। सर इसका दूसरा क्या है? वेल बिगन इज हाफ डन का एक ही लिखवाया था और हमने बहुत सावधानी से बोला था, खूब सारा समझा के कि बच्चों इंग्लिश में ठीक है, गलती हो रही है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं ये नहीं, इसका दूसरा मैंने कल जब परसों मैच में मैं कमेंट्री सुन रहा था, जब मैच खत्म हुए रात में तब मैंने सुना, उसने बोला वेल वेल बिगन इज हाफ डन। उसके बाद उसने कुछ ऐसा हिंदी का टिपिकल वर्ड बोला पूरे सेंटेंस में, समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब या तो उसकी जब हाइलाइट्स आएंगी या कुछ ऐसा होगा या मिलेगा यूट्यूब में जरूर होगी वो, तो तुम उसका लिंक हमें भेजना, हम सुनेंगे। टीवी पे चला, मैं काम कर रहा था तो एकदम से सुना। लेकिन सबसे पहले तो हम तुम्हें एक ट्रॉफी देना चाहेंगे। ये जो हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये चीज डेवलप हो, एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए। कहीं पे भी आप अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी, और कहीं कोई चीज चल रही है तो फट से आपके दिमाग की बत्ती जले, अरे यार ये हम चाह रहे हैं सब में अगर डेवलप हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगी राह। वोकैबुलरी खूब डेवलप होगी तुम्हारी अपने आप ऑटोमेटिक। ये अनुभव है मेरा व्यक्तिगत। कृष्णा आस्क्ड राधे, राधे वेयर आई स्लीप। मैं आपने ये बोला था सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा हाँ सॉरी सर, ठीक है। कृष्णा आस्क्ड राधे, राधे वेयर टू स्लीप। कृष्णा ने राधे से पूछा, राधे कहाँ सोना है? Share, can you suggest me where to go for vacation? शेयर, क्या तुम मुझे सलाह दे सकती हो, मुझे वेकेशन, मैं वेकेशन पर कहाँ जाऊँ? सॉरी चलो सॉरी बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया। गलती मैंने की थी। Sir, this time who is
where boss this time where to represent our company. सर इस बार अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं कहाँ कर हाँ अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व कहाँ करना है नहीं सर मैं कुछ और पूछ रहा हूँ Well, you have to represent your company in Seoul this time. बॉस ने आंसर दे दिया. I asked to my mama, where is my strawberry? फिर Strawberries. Sorry. फिर क्या होगा? नहीं मिली खत्म हो गया मतलब हम ढूंढ रहे हैं कि इंटरेक्टिव कहाँ है पूरे सेंटेंस में. तुम उनको ऐसा लिख के दिया था कि नहीं? Asked. उसके पूरे सेंटेंस में इंटरेक्टिव कहीं दूर दूर तक नहीं. बी प्रेजेंट का सेंटेंस बना दी. वेयर इज माय स्टॉरी. My एक friend. मिनट बैठे ठीक कर रहे हैं My friend asked रिप्रेजेंट where to party. अरे चले सेंटर नहीं किया वो ही चल रहा ब्याह करके वो वर्ड की करना अच्छा, ये सिर्फ कंफ्यूजन है सर कोई? यार पूछ लिया कर यार, इतनी कंफ्यूजन मत करो. हम फिर से लेके देखते हैं. हाँ, जब तक तुम बना तो रहो. My friend asked where to party in the party in the new. My friend asked where to party. Incomplete. दोस्तों ये गलती से एक अच्छी चीज हो गई. पार्टी नाउन है, हम 27 साल से जानते हैं, लेकिन अभी अभी हमने नोटिस किया है कुछ जगह पर वर्क की तरफ जरूर कर रहे हैं. लेट्स पार्टी सुना है, और लेट्स के बाद हमेशा वर्क ही आती है. सर लेट्स गाना भी है अभी भी चल रहा है Let's listen. ऐसा ही कुछ है यार देश तुम जय गाना बता दो मुझे हेलो करने नहीं गाओ मत, लेकिन एक आध लाइन तो बता दो अगर हो तो. नहीं सर मैं भेजूंगा अगर मिला तो मिल जाएगा. यूट्यूब में टाइप करोगी मिल नहीं वो जाएगा. यूट्यूब का नहीं वो रील में चल रहा था अभी पीछे इसका ये सेंटेंस बड़ा फेमस है. चलो एक नाम एक एक करके सबसे एक बार बुलवा देते हैं. बिल्कुल प्लेन. वेयर टू गो, कहाँ जाना है? सीधे सीधे बोल. Where to go? कहाँ जाना? Where to go? कहाँ जाना? Where to go? कहाँ जाना? Where to go? कहाँ जाना है? Where to go? कहाँ जाना? Where to go कहाँ जाना है? Where to go कहाँ जाना है? वेयर टू गो कहाँ जाना Where to go? कहाँ जाना? वेयर टू गो कहाँ जाना. सब पूछते ही है जाने को नहीं देता Who is the rest? बस दो मिनट I asked my brother where to have fun. मैंने अपने भाई से पूछा कहाँ मजे करने हैं.
इतने प्रैक्टिकल सेंटेंस बनते हैं अगर घर के हिसाब से सोचो। माय यंगर ब्रदर आस्क्ड, भैया वेयर टू पुट दिस, मेरे छोटे भाई ने You speak पूछा, out of my mouth. भैया ये कहाँ रखना है। माय यंगर ब्रदर आस्क्ड, भैया वेयर टू पुट इट, मेरे छोटे भाई ने पूछा भैया इसको कहाँ रखना है। भैया बोलते यहाँ मूड पे ढाल के। My younger sister asked me where to study. मेरी छोटी बहन पूछती है कहाँ पढ़ना है। मेरी छोटी बहन ने पूछा कहाँ पढ़ना है। Sometimes I don't know where to study in my home. कभी सब मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ पढ़ना है। दूसरा हिंदी बोल दे, देखो ना लिखा है, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। कभी कहाँ नहीं नहीं, इस इडियम के दो हिंदी लिखवाए, क्या पढ़ना है? फिर से लिख देते हैं। क्या पढ़ना। I asked my teacher where to teach. मैंने अपनी टीचर से पूछा कहाँ पढ़ाना है। भैया asked where to do. भैया ने पूछा क्या करना। Sorry. तुम लोग को फ्यूचर सिंपल का फेस टू फेस दिया था ना, सारे WH यूज करने के लिए बोला Yes, ये थे ना। sir. तो व्हाट यानी क्या होता, क्या? वेयर यानी, कहाँ? व्हेन यानी, कब? व्हाई यानी, क्यों? हाउ यानी। कैसे? गुड यार तो है। पहले बेसिक तो चेक कर ले कि वेयर का मतलब क्या होता है और व्हाट का was मतलब। not present in that previous case. Sir, I asked my students where to study. मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कहाँ पढ़ना। टुडे और लगा तो बड़ा खूबसूरत है। I asked my students where to study today. मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा आज कहाँ पढ़ना है। सर पूछना पड़ता है। नहीं मान लो ड्राइंग रूम में पुताई चल रही तो भी आज कहाँ नहीं पढ़ सर रहे? कुछ नहीं भी होते तभी लोग कपड़े बदलते रहते हैं। आज हॉल में कभी बेडरूम में। सर आज छत पे पढ़ना है। हाँ ये छत पे छत वाला ऑप्शन भी होता है। सर सुबह 7 बजे छत पे ले जाएंगे पढ़ने, बोलेंगे चलो इधर छत पे पढ़े। एप्पल। I asked GS professor, sir, where to submit these papers? वेरी नाइस। मैंने GS प्रोफेसर से पूछा, सर ये पेपर कहाँ जमा करूं? ऐसा बना सकते हैं। Who asked me where to gather? इसने पूछा था कि कहाँ इकट्ठा होना है। वेरी नाइस।
I asked my art teacher where to draw this picture. मैंने अपने आर्ट टीचर से पूछा कि ये पिक्चर कहाँ बनाना Daya asked where to put the cup. दया ने पूछा कप कहाँ रखना है. Chotu asked where to break this glass. वो तो मैंने ऐसे ही कहा. फूफा जी asked where to stop बारात. फूफा जी ने पूछा बारात कहाँ रोकना है. सर नुक्स को क्या बोलते हैं? आपके सेंटेंस के लिए अच्छा कुछ एक वर्ड. नुक्स. वो नुक्स निकालना वो बोलते हैं ना. इंग्लिश वर्ड. मिस्टेक एक तो सरल सा शब्द है मिस्टेक. एक शब्द और अभी चल रहा है फ्लॉ. Flaws. She speaks flawless sentences. What is the flaw in my sentence? ऊपर भी asked where to find flaw. Sir, Kupaji think where to find flaws. Kupaji सोच रहे हैं. सोच रहे हैं. नहीं कुपाजी नहीं सोच रहे हैं बना दो ना टेंस. हाँ बन जाएगा. भाई सोच रहे हैं कौन सा टेंस बन जाएगा. कुपाजी सोच रहे हैं नुक्स कहाँ निकालूं. नहीं पहले इंग्लिश में तो सही करो. अच्छा. कुपाजी think सबसे सरल टेंस है भाई. सबसे उपयोगी टेंस है. रोज बोलने वाला टेंस है. अच्छा तुम लोग में से हाथ उठाना. घर में एक भी बार किसी ने किसी से पूछा हो वेयर आर यू गोइंग. हाँ ये पूछ ले अपने स्टूडेंट से बच्चों से. I was asking where to find water. पूछ रही थी पानी कहाँ से पीना. पानी कहाँ. पानी कहाँ से पीना. पानी कहाँ से. पानी Again, is thinking where to find flaws. मनीष सोच रहा है नुक्स कहाँ निकालूं. मेरे में पूरे नुक्स है. My friend asked my another friend where to smoke. That एक चीज नहीं है बीच में. नहीं मैं asked my another friend. इसके बीच में कुछ आया है. Chetan, have you prepared your third speech? No problem.
But you have I given you, I will try my best. Not yet. Yes, sir. No. बच्चों, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to future simple. This belongs to future simple tense. Come again. This sentence belongs to future simple tense. What is the subject in this sentence? I is the subject in this sentence. What is the helping verb? Will is the helping verb. What is the main verb? Try is the main verb. What is the form? The first form of the song. What is my best? My best is the subject. Can you guess the meaning? It is easy. Yes. Here we go. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. I will try my best. मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश करूंगा. I will try my best. कुछ जोड़ना चाह रहे हैं ना? नहीं. Sir, try my best to get this match. Yes. Complete. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये मैच जीत जाऊं. नहीं, पूरा पलट जाता है बेटा. मैं इस मैच को जीतने की तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. यस, ऐसा होता है. आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है आई. एक बार इसको बोल के देखिए और कुछ ना कुछ आगे जोड़ देना. ठीक है. I'll try my level best to achieve gold medal. मैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. I'll try my level best to crack my PSC. नहीं. इसलिए बोल रहे थे जोड़ो. और दूसरे को सुनो. एक नियम, छोटा सा नियम पूरे समय काम में आएगा. I'll try my level best to crack PSC exam. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश. मैं PSC एग्जाम क्रैक करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. I'll try my level best to succeed in my life. To succeed in my life. सॉरी. To succeed. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी अपनी लाइफ में सफलता पाने की. I'll try my level best in fire match. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा. फायर मैच
three. Sorry. I'll try my best, try my level best in win my final match. Sorry. बच्चों, what is label? What is the meaning of label? The meaning of label Should be Exceed. start. What is label? Label is the noun. What is the meaning of label? The meaning of label is Hmm. तमगा. सर मेडल को भी तमगा बोलते हैं या ट्रॉफी लेके आते हैं इसको भी तमगा देते हैं. तमगा जो यहाँ लग रहे. तुम बना दो. I will try my level best to train the volunteers. अपना पूरा मैं volunteer को train करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ. Do you know the Hindi meaning of volunteer? Participants कहते हैं. स्वयं सेवक जो अपनी मर्जी से सेवा देने के लिए आगे आते हैं उनको वॉलेंटियर कहते हैं. I will try my level best to get a good job. मैं अच्छी नौकरी पाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. I'll try my level best in school. सर ऐसे कंपटीशन को क्यों नहीं ऐसे अरे हम नहीं वो एक टॉपिक दे दिया जाता तुरंत वो एक्सटेम्पो. I try my level best to win extempo competition. मैं अपनी extempo competition जीतने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. तत्कालिक भाषण. हाँ एकदम शांत. I will try to give my best. I will try to give my level best in your company after joining. मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने के बाद अपनी तरफ से पूरी कोशिश. I will try my level best to save extinct animals. मैं extinct animals बचाने की पूरी कोशिश करूँगा. हिंदी पता है? विलुप्त जानवरों की पूरी बात करूँगा. Sir, I think the spelling of label is wrong. So, first one or second one? Second one. What should be the spelling? The spelling is L-A-B-E-L. Label. L-A-B-E-L. You are right. Thank you. Label. Google. Yes. I'll try my level best to understand you. मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूँगी. I will try my level best in English coaching. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. Should I erase these meanings? Yes. Have I given you this one?
Yes, sir. Try. Yes, sir. ड्राइवर में जब हम लिखवाते हैं बच्चे तो उसके साथ उसका एक और सिनोनिम लिखवा देते हैं, पर्यायवाची मिला याद है। What should be the word for कोशिश करना? What should be the second form of try? The second form of try should be tried. And what should be the spelling of second form? The spelling of second form should be TRIET. And what should be the third form of try? The third form of try should be What should be the another word for कोशिश करना? the other one. कोशिश करना should be effort. What should be the second form of make effort? The second form of make effort should be made effort. And what should be the third form of make effort? Third form of make effort should be अफर्ट ज्यादा बोलते इंग्लिश मीडियम वाले, अफर्ट। Should I erase the interactive sentence? Yes, sir. Have you written? Yes, sir, we have written. बच्चों इसके साथ जो इडियम यहाँ पे सीक्वेंस में है वो अगर पहले दे दी हो तो बताना। He is an apple of my eyes. No, sir. Can anybody guess? वह मेरी आंखों को तारा Yes. Which chapter does this sentence belong? Yes, yeah, right. What is the subject of this sentence? He is. He is the subject. What is the helping verb here? There is no helping verb. What is here? Is a main verb. What is an? And article. What is apple? Apple is a noun. What is of? Of preposition. What is my eyes? My as an object. इसका इन्वर्टेड बना दो और उससे पूछो सीधे सीधे। इन्वर्टेड बनाने का एक नियम है, 3 उंगलियों पे। क्या है? सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट के पहले Is he an apple of your eyes? हाँ हाँ, बोलने वाले थे, तुमने सही किया। Is he an apple of your eyes? Yes, he is an apple of my eyes. क्या वह तुम्हारी आंखों को तारा है? हाँ वह मेरी आंखों का तारा है। Is he an apple of your eyes? सब्जेक्ट बदल।
जिससे ना बने मत बदलना, जिससे बन जाए बदल देना। Is section is an apple of your Sorry, eye? sorry. हाँ, वो यहाँ उठा के हम रखते हैं। Is section an apple of your eyes? Yes, Saksham is an apple of my eye. क्या section तुम्हारी आपको बता रहा है? हाँ, Saksham मेरी आंखों का तारा है. Is she an apple of your eyes? Yes, she is an apple of my eyes. मैं तुम्हारी आंखों की तारा. तारा है. यही ठीक है. ये भी ठीक नहीं है बेटा, प्रश्न तो करो। तो क्या मैं तुम्हारी आंखों की तारा है? क्या मैं तुम्हारे आंखों की तारा, आंखों का तारा है? हाँ, वह मेरी आंखों का तारा है. Is Raj Kapoor an apple of your eyes? Yes, Raj Kapoor is an apple of my eye. क्या राज कपूर तुम्हारी आंखों का तारा है? हाँ, राज कपूर मेरे आंखों का तारा है. मना भी कर सकती है उसमें। Is Minnie an apple of your eyes? Yes, Minnie is an apple of my eyes. क्या मिन्नी तुम्हारी आंखों का तारा है? हाँ, Minnie मेरी आंखों का तारा है. Is Sachin an apple of every Indian eyes? Yes, Sachin is an apple every Indian of every Indian eyes. Indians. Every Indian eyes. क्या सचिन सभी भारतीयों के आंख का तारा है? हाँ, सचिन सभी भारतीयों के आंख का तारा है. हाँ, आंखों आंखों का तारा है. सही। Is he an apple of my eyes? सॉरी Your क्या eyes. दिक्कत? सही तो है। तो सामने वाले से पूछ रहा है कि क्या वो मीडिया का तारा है? सामने वाले को क्या पता? वो तो आई डोंट नो। Is he an apple of your eyes? No, he is not an apple of my eyes. क्या वो आपकी आंखों का तारा है? नहीं, वो मेरी आंखों का तारा नहीं है. Is Sonam of your eyes? Yes, Sonam is an apple of my eyes. क्या सोनम तुम्हारी आंखों का तारा है? हाँ, सोनम मेरी आंखों का तारा है. बदल लिया. Is Reshma an apple? Yes, Reshma is an apple of my eyes. Maybe तुम्हें तो क्या रेशमा तुम्हारी आंख का तारा है? Adesh मेरी आंख का तारा है. Is he an apple of your eyes? No, he is not an apple of my eyes. क्या वो आपकी आंखों का तारा है? नहीं, वो मेरी आंखों का तारा बिल्कुल नहीं है. आंखों की किरकिरी है। एक मजेदार बात आज लास्ट में 1 मिनट के लिए दोस्तों, बहुत सारे WHO वर्ड्स हमने लिखवा दिए हैं और 2 पेज पूरे छोड़वाए हैं, मतलब 3 अगर गिन ले तो बहुत सारे और भी आगे मिलेंगे। लेकिन एक मजेदार बात, हु नाम का जो WHO वर्ड है एक्चुअली वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है।
ऐसे पूछोगे तो सेंटेंस सही बनेगा, WH से बनाओगे तो गलत हो जाएगा। और इसी के साथ आज की सभा समाप्त। नमस्कार। भारत माता की जय।